Good evening to all the students. In this lecture, we will study about the astronomical telescope. Okay. So first we define the telescope, then its various types, and then we deal with the astronomical telescope, which is one of the telescope in our syllabus. So in yesterday's lecture or in the previous lecture, we study about the कंपाउंड माइक्रोस्कोप. उससे पहले हमने सिंपल माइक्रोस्कोप स्टडी किया था. देन वी स्टडी अबाउट द कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड द मैग्निफिकेशन बाय द कंपाउंड माइक्रोस्कोप वाज -L अपॉन f नॉट 1 + d अपॉन fe. Clear? And if we form the image at infinite, then its magnification becomes -L upon f naught and d upon fe. Clear? So 1 plus वाला फैक्टर वहाँ से रिमूव हो जाता है when we talk about the image at the infinity. Clear? Where d is the distance, least distance of distinct vision, which is having the value 25 centimeter for a normal eye. Clear? So now we talk about the telescope. Clear? So telescope are also two types in our syllabus. The one more type telescope is not in our syllabus, that is the terrestrial telescope. Okay, so the two types of the telescope. First of all, what is the telescope? Telescope is an optical device like a microscope. Okay, microscope was also an optical device and telescope is also an optical device, and their functions are just reverse. Microscope is used to see very small or tiny objects. Clear? And enlarge its image, and the telescopes are used to see the objects clearly which are very far apart. ओके, सो बहुत दूर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं लाइक प्लैनेट्स और स्टार्स, और उनको अगर हमें मैग्नीफाई करके देखना हो, उसका एंगुलर मैग्निफिकेशन हमें अगर चाहिए, देन वी यूज द टेलीस्कोप. So we can define the telescope as it is a optical device which is used to see the objects which are very far apart or very distant objects, and to magnify their image. Okay, उनकी इमेज को हम मैग्नीफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द टेलीस्कोप. सो मेजर फॉर्म में तो टेलीस्कोप दो टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट वन इज रिफ्रैक्टिंग टाइप एंड सेकंड वन इज रिफ्लेक्टिंग टाइप. Clear? So in refracting type there are further two type of telescope. The first one is astronomical and the second one is terrestrial. Clear? In astronomical, the telescope used to see the heavenly objects like planets, subplanets, stars or satellites, etc. So this is called the astronomical telescope, and the image formed in astronomical telescope is inverted. And two lenses we will use here also, like one is objective and second one is the eyepiece. So I will explain about it in detail after few minutes. So first the terrestrial, second type of the refracting type telescope is the terrestrial telescope, and this terrestrial telescope is form the erect image. क्लियर? और जो टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो अर्थ पर लाई करते हैं, वो जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है जो फार अपार्ट है फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्लेस, उनको अगर हम एनलार्ज करके उनकी इमेज को अगर देखना चाहें, देन वी यूज द टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, एंड दैट इज ऑल्सो रिफ्रैक्टिंग टाइप, एंड वी जनरली यूज 3 lenses there. But that terrestrial telescope is not in our syllabus, so we will not deal about it. So the third one which is in our syllabus, that is the reflecting type telescope. Clear? So we here only talk about the astronomical, which is refracting type telescope, and second one is the reflecting type telescope. Clear? वो एक ही है type उसका. So let us start with the telescope. So write down the heading telescope, and obviously it is the last topic of this chapter. It is an optical device, or we can say instrument, used to see distinct objects clearly. Okay, distinct means which are very far apart, that is the objects
very far apart. It provides angular magnification. Angular magnification, जो बहुत स्मॉल टाइनी दिखते हैं उनको हम एनलार्ज करके उनको एंगुलरली मैग्नीफाई करके हम विजुलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं. क्लियर? So there are two types of telescope. The types of telescope, first one is a refracting type and the second one is a reflecting type. Okay, and refracting type also have the two sub classification. The first one is astronomical and the second one is terrestrial. Okay, astronomical telescope and the terrestrial telescope. So this is a simple definition and its type. Clear? Name of this. So in syllabus there is astronomical and the reflecting type telescope. So let us take the first one, astronomical telescope. Astronomical telescope. The telescope which is used to see the heavenly objects like stars, planets, satellites, etc. Okay, we use this astronomical telescope. It consists of the two lenses. The first one is the called objective and second one is called the eyepiece. The focal length and the aperture of objective which faces the object, as its name indicate that the objective will face the object and eyepiece will be towards the eye. Okay, we will see through the eyepiece in the telescope. So the objective has large aperture and large focal length, clear, comparative to the eyepiece, and the eyepiece have small focal length and the small aperture comparative to the object. It is just the reverse condition, clear, comparative to the compound microscope. Compound microscope में हमने क्या कहा था कि ऑब्जेक्टिव का एपर्चर कम होगा, फोकल लेंथ कम होगी और आईपीस का फोकल लेंथ और एपर्चर ज़्यादा होगी, लेकिन यहाँ अपोजिट है. क्लियर? लेकिन यही नहीं है इसका मीनिंग कि यू जस्ट इन्वर्ट द डायरेक्शन ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड इट बिहेव लाइक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप. ओके, बिकॉज देयर आर सो मेनी फैक्टर्स विच अफेक्ट द एक्चुअल मैग्निफिकेशन. सो एक नॉर्मल बाइनोक्यूलर्स में ऐसा होता है जो एज अ बच्चे टॉय भी यूज लेते हैं, जिसमें हम एक साइड से देखते हैं तो चीज़ें एनलार्ज हो जाती है और अपोजिट साइड से देखते हैं तो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो फार अपार्ट चले जाते हैं. Clear? That is a different concept, but in case of the astronomical telescope and compound microscope, different lenses are used actually. Okay, इनकी focal length, इनका जो aperture है वो उसके according set होता है कि हमें कितने distance तक उसको देखना है, कितने close objects को, कितने tiny objects को हमें उससे magnify करना है. Clear? So it is not the just reverse case, but just for comparison we can say that in case of this telescope, the aperture and the focal length of this objective is large comparative to the eyepiece. Clear? इसका जो रीजन है ना क्यों इसको ज़्यादा रखते हैं, it is having two reasons. The first one, the image form will be bright, क्योंकि इसकी जो रेस को कलेक्ट करने की जो एबिलिटी है वो बढ़ जाएगी अगर हम इसका एपर्चर बढ़ा दें. क्लियर? जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसका अगर हम एपर्चर बढ़ा देते हैं फर्स्ट लेंस का जो ऑब्जेक्ट को फेस कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट बहुत लार्ज डिस्टेंस पर है तो उससे जो रेज आ रही है वो ऑलमोस्ट इन्फिनिटी से आ रही है ना. ऑब्जेक्ट बहुत लार्ज डिस्टेंस पर है तो ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी. ओके, सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन्फिनिटी देन व्हाट हैपन, द रेज विल कम फ्रॉम द इन्फिनिटी एंड ऑलमोस्ट पैरेलल
to each other. So in that situation, the number of rays which are gathered by this objective should be large, so that the bright image will form, okay, by the telescope. Clear? So this is the first reason that we use a large aperture and a large focal length. The second reason is the resolving power of this telescope also affected by taking the large aperture. Okay, so if larger the aperture or the linear diameter of the aperture, then the resolving power will also be high for the case of telescope. And resolving power means it is the ability of an optical instrument to just resolve very close objects. ओके, दो क्लोज ऑब्जेक्ट्स को जस्ट रिजॉल्व या सेपरेट करना, ओके, उनकी उसकी जो एबिलिटी होती है दैट इज कॉल्ड द रिजॉल्विंग पावर. In proper manner we will study about the resolving power and a criteria given by the Rayleigh in the chapter number 10. वेव ऑप्टिक्स में हम इसको डील करेंगे. ये जो डिफ्रैक्शन का फिनोमेना है उस पर बेस्ड होता है, तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के साथ हम इसको रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप को डील करेंगे. ओके, सो ये भी एक रीजन यहाँ पर हम पुट करेंगे कि द लार्जर द ऑब्जेक्टिव एपर्चर, लार्जर विल बी द रिजॉल्विंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप एंड ब्राइटर विल बी द इमेज, बिकॉज इट विल कलेक्ट मोर एंड मोर रेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट विच इज एट द इंफिनिटी. Clear? So these are the two reasons for which we take the large aperture and large focal length of this objective. So these are the two lenses. Again we take the two cases. यहाँ भी हम दो केसेस लेंगे टेलीस्कोप को स्टडी करने के लिए. द फर्स्ट केस विल बी व्हेन द इमेज फॉर्म एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. Clear? And the second one which we will take here, that is when the final image form at the infinity. क्लियर? तो एक तो हम फाइनल इमेज को कहाँ बनाएंगे, 25 सेंटीमीटर पर, यानी एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और सेकंड हम ड्रॉ करेंगे वहां पर जब वो फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बने. क्लियर? तो राइट डाउन अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप. It is used to see the heavenly objects like stars, planets, satellites, etc. Okay, it consists of two lenses placed coaxially named objective faces the object and eyepiece. This eyepiece is also called ocular. Okay, eyepiece का जो second name है that is also the ocular. Optics का एक name है vision से related, so it is also called ocular. तो आप compound microscope जहाँ हमने discuss किया ना, वहाँ भी eyepiece का second name ये याद रखना. Okay, हो सकता है आपको focal length ocular की बोल दे, so it have the same meaning. The eyepiece or the ocular faces the eye. The aperture of objective is aperture and focal length both are large. Okay, so we will combine them. So aperture and focal length of objective is
very large या larger than eyepiece. Okay, so that the magnification increases. इससे देखो मैग्निफिकेशन भी बढ़ता है. अगर हम एपर्चर को लार्ज करते हैं ना ऑब्जेक्टिव के, तो मैग्निफिकेशन इंक्रीज होता है. वी विल डिराइव अ फॉर्मूला हियर फॉर द मैग्निफिकेशन ऑफ दिस telescope. So I will explain you later also that if this focal length and aperture, even this focal length of the objective is large comparative to the eyepiece, then the magnification will also increase. ओके, तो फोकल लेंथ से हम मैग्निफिकेशन को इंक्रीज करते हैं, और एपर्चर से मैंने बताया रिजॉल्विंग पावर इंक्रीज होती है लार्ज लेने से, और दूसरा वो इमेज जो है वो ब्राइट बनती है. ठीक है, so that the magnification increases. Okay, increases correct है. Then bright image form and एक बार नोट करना है यहाँ तक. I will write at top of the board. One change is there. This should be distant objects. Okay, distinct नहीं, distinct तो हो गया अलग अलग है ना. distinct का मीनिंग तो डिफरेंट है. It should be distant object. Okay, correct this spelling. So it is an optical instrument used to see distant objects clearly. Not distinct. Distinct means different. Okay, and distant means which are very far apart. वैसे उसका मैंने that is करके लिख दिया था, but correct कर लेना उस spelling को. So the next continue, we are continuing bright image form and increase the resolving power. Increases its resolving power. ओके, इन शॉर्ट लिख देते हैं ब्राइट इमेज कैसे बनती है. ब्राइट इमेज फॉर्म बिकॉज इट विल कलेक्ट large number of rays from distant object and resolving power. The bright image form because this, and resolving power means, इसका मीनिंग लिख रहा हूं मैं यहां पर. resolving power means ability to just separate very close objects. देखो इन्फिनिटी पे भी हो सकता है ना कि दो ऑब्जेक्ट्स बहुत ही क्लोज हो, जिनको हम सेपरेट नहीं कर पाए. ओके, डायरेक्टली बाय आई और डायरेक्टली बाय एनी अदर इंस्ट्रूमेंट. सो अगर उसकी रिजॉल्विंग पावर अच्छी होगी तो वो उनको सेपरेट करके दिखाएगा कि यस दीज आर टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. क्लियर. तो दिस इज द एबिलिटी, दिस एबिलिटी इज कॉल्ड द रिजॉल्विंग पावर. ठीक है, इसको हम नाम देते हैं रिजॉल्विंग पावर. So now we are ready to draw the diagram for case first. Here also we deal with the two cases. So first write down case first. When final image formed at least distance of distinct vision. Okay,
So the diagram for the same will be, diagram is important. Many times only diagram is asked by the CBSE, so take care in drawing the diagram and understand this better. So this is the first lens, objective. Clear? This point is O. This is objective lens. It will faces the object. Object will be here at infinity, and the second lens will be this one, the eyepiece. Okay, so this is the eyepiece or ocular, and let this point is what? It is E. Okay, the first one which faces the object is objective, and from where we will observe or we will see is the eyepiece. Clear? Eye will be placed in front of this eyepiece. So what will happen? The object will, incident ray will appear in the objective. So let us take an incident ray, a ray incident on this, passes through the optic center, and this ray is coming from infinity. Okay, this ray is coming from infinity. So this is the first one ray, without any deviation it will pass. Okay, this is, there is no deviation for this case. And the second ray which I am taking just parallel to it, it will refract from this surface. Clear? And passes through the second point here, and the point where these two intersecting, okay, this point where these two rays are intersecting will be the image formed by this objective. इस ऑब्जेक्टिव के कारण जो इमेज बनेगी वो यहाँ पर बनेगी. जस्ट अ मिनट, मैं इसको स्ट्रेट कर रहा हूँ. सो दिस विल बी द इमेज, एंड ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी, वी कैन से they are coming, these rays are coming from infinity, and let the angle made here is alpha, and this one is also alpha. Clear? So now we are taking two rays. First one here parallel to principal axis. देखो, this intermediate image a dash b dash, okay, this intermediate image a dash b dash will work as an object for this eyepiece. कल भी हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऐसे ही किया था. तो दिस विल वर्क एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द आईपीस. सो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट विल passes through its focus point, and we extend it in the back side like this. Similarly, the second ray towards the optic center, okay, it will again I am extending this in the back side, so this will be like this. Okay, try to use scale in drawing these diagrams. Diagrams are very important, so उसको straight रखना, ये ध्यान रखना. क्लियर? स्केल यूज लेना इसको एग्जाम में ड्रॉ करते हो जब डायग्राम को. डायग्राम ही कई बार पूछा जाता है, मैंने कहा, और उसके भी मार्क्स होते हैं. लाइक 5 मार्क का अगर ये क्वेश्चन है तो उसमें 2 मार्क डायग्राम के होंगे. सिमिलरली दीज रेज विल आल्सो रिफ्रैक्ट इन दिस डायरेक्शन. सो ये पॉइंट जो इंटरसेक्शन का है ये अब कॉमन रहेगा सबके लिए. एंड हियर आल्सो, सो आई एम मेकिंग द इमेज हियर, एंड दिस इज द फाइनल इमेज. This is the final image which formed here in this case, and let this is B double dash A double dash. Okay, this is B double dash A double dash, and this is the final image, and final image is subtending an angle beta like the compound microscope here on the eyepiece, or we can say eye. So here also the angle beta is subtended at eye, and angle alpha is subtended at objective by the incident rays. Clear? So now we draw some distances, like these rays are coming from infinity.
So after refraction the image will form at the focus point. देखो जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पॉइंट पर रखते हैं तो इमेज इन्फिनिटी पे बनती है ना, तो अगर इन्फिनिटी से रेज आएंगी तो उसका जो इमेज है यानी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पॉइंट पे बनेगी। तो ये जो पॉइंट है ना एक्चुअल में ये बी डैश, दिस बी डैश इज आल्सो द फोकस पॉइंट एफ नॉट ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव। ये ऑब्जेक्टिव की फोकस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, रिमेंबर, क्लियर, दिस डिस्टेंस इज व्हाट इट इज एफ नॉट। समझ में आया क्यों? क्योंकि जो रेज इंफिनिटी से आ रही है आफ्टर रिफ्रैक्शन दे विल फॉर्म द इमेज एट द, they will form the image where at the focus point and similarly this distance will be what, ये जो distance हम लेंगे it is UE, इसको हम नाम देंगे UE। and this UE will be negative and FO will be positive, क्योंकि ये इसकी फोकल लेंथ है एक तो पहला पॉइंट और इसकी इमेज डिस्टेंस है एक तरह से, तो इस यहाँ अगर ओरिजिन हो तो इमेज डिस्टेंस उधर कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, क्लियर। सो ड्रॉ द डायग्राम, लेट द रेज कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट at from infinity makes an angle alpha at objective which will be nearly equal to angle made at I और eyepiece। देखो यहां एक हम कंडीशन लगा रहे हैं, वो कंडीशन क्या है कि हमने इस एंगल को अल्फा लिया है, लेकिन देखो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत ही स्मॉल है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जो एंगल यहाँ अल्फा बनेगा ऑलमोस्ट उतना ही एंगल यहाँ आई पर भी बनेगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा इन दोनों एंगल में। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं इट इज द एंगल मेड एट इंफिनिटी बाय द आई पीस और एट द आई और द आई पीस। ऑब्जेक्ट जो है वो एंगल जो सबटेन कर रहा है आई पर वो ये है, जहां ऑब्जेक्ट कहां पर है, इंफिनिटी पर है। एंड A dash B dash is image form, जल्दी से इंट्रोड्यूस करते हैं इसको, इमेज फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव एट इट्स फोकस पॉइंट। ठीक है, फोकस पॉइंट पर ये इमेज बनेगी A डैश B डैश, मैं बता चुका हूं क्यों बनेगी, तो इंफिनिटी से आ रही है इसीलिए हम कहेंगे कि फाइनल इमेज फॉर्म एट द फोकस पॉइंट। द नेक्स्ट पॉइंट, दिस A dash B dash works as an object for refraction through eyepiece। eyepiece से जो रिफ्रैक्शन हो रहा है उसके लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी एंड द फाइनल इमेज A डबल डैश B डबल डैश makes angle बीटा एट I। ठीक है, तो ये भी हमने एज्यूम कर लिया कि I पर जो फाइनल इमेज है ये बीटा एंगल बना रही है, A डबल डैश B डबल डैश मेकिंग एन एंगल बीटा, और जो ऑब्जेक्ट है ये अल्फा एंगल बना रहा है I पर। इन्हीं का रेशियो हम लीनियर ये एंगुलर मैग्निफिकेशन बोलते हैं, बीटा अपॉन अल्फा। सो जो हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी यूज लिया था। सो टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट।
So now we know the angular magnification is given by m equals to बीटा अपॉन अल्फा. बीटा क्या है? एंगल सबटेंडेड. अगर डेफिनेशन लिखनी हो तो रेशियो ऑफ दिस एंड दिस लिख लेना. एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज एट आई पीस, और वी कैन से आई. ठीक है, एट आई पीस एट इमेज कहाँ बन रही है? द फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. क्लियर? हम ये केस जो कर रहे हैं डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन एंड डिवाइडेड बाय दिस इज द बीटा एंगल. इससे ये एंगल का नाम है कि एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज एट द आई पीस when we image form at least distance of distinct vision. शॉर्ट में लिखा है मैंने. Similarly, alpha is what? Angle subtended by final image, by object. Angle subtended by object at eye or eyepiece when object placed एट इंफिनिटी. ठीक है, ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है? इंफिनिटी पर रखा हुआ है. और इसमें भी आई पीस इमेज ऐड कर देना. ठीक है, या व्हेन इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. क्लियर? सो व्हेन इमेज ऐड कर देता हूं यहां पर, व्हेन इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. तो ये एक्चुअल में अल्फा और बीटा के नेम है जो हम जिनका रेशियो हम ले रहे हैं. और इसकी अगर डेफिनेशन पूछी जाती है एंगुलर मैग्निफिकेशन की, तो यू कैन डिफाइन लाइक दिस. क्लियर? कल जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में था उन दोनों में मैंने लिखा था लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. ऑब्जेक्ट भी वहीं पर था और इमेज भी वहीं पर थी. लेकिन आज ऑब्जेक्ट जो है वो इंफिनिटी पर है और इमेज डी डिस्टेंस पर बन रही है. ये वाली जो डिस्टेंस है ना, इसको हम डी कह रहे हैं. और इवन ये भी माइनस डी होगा. जो a डैश b डैश से e की डिस्टेंस है, दिस इज माइनस d. क्लियर? सो दिस कैन आल्सो बी रिटन एज tan बीटा अपॉन अल्फा नियरली इक्वल्स टू tan बीटा अपॉन tan अल्फा. क्लियर? जैसे जब अल्फा और बीटा स्मॉल होते हैं तो हम उनको tan की टर्म में लिख सकते हैं. सो इन ट्राइंगल, अब यहाँ देखो tan बीटा और tan अल्फा हम फाइंड करेंगे. सो इन ट्राइंगल ओ ए डैश बी डैश, या पहले बीटा ले लेते हैं. इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश ई. देखो इस छोटे से ट्राइंगल में, ठीक है, इन दिस ट्राइंगल द tan बीटा विल बी व्हाट? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. सो परपेंडिकुलर इज व्हाट? परपेंडिकुलर इज ए डैश बी डैश. परपेंडिकुलर इज ए डैश बी डैश एंड बेस इज बी डैश ई. बी डैश ई. And in triangle A dash B dash O, इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, A dash B dash O. इस ट्राइंगल में देखो ये क्या होगा? अगेन tan अल्फा अगर मैं फाइंड करूं तो परपेंडिकुलर है यहाँ पर अगेन A dash B dash and divided by B dash O. Clear? So when we put these values here in the expression of m, then we will get, therefore the m will be what? It is a dash b dash upon b dash e divided by a dash b dash upon b dash o. So देखो a dash b dash से a dash b dash कैंसिल हो जाएगा and it will be b dash o upon b dash e. और इसको हम क्या लिख सकते हैं? This is equals to b dash o. b dash से o की डिस्टेंस है f o, focal length of the objective. So it is f o divided by b dash e. b dash e is the u e and माइनस है, नेगेटिव है वो, इसलिए ये माइनस u e हो जाएगा. तो एक तो फॉर्मूला यही है एंगुलर मैग्निफिकेशन का.
और ये नेगेटिव का मीनिंग यहाँ पर क्या है कि इन्वर्टेड इमेज बनती है। नेगेटिव हम जब भी मैग्निफिकेशन के जितने भी फॉर्मूला लिखेंगे ना तो उसमें नेगेटिव साइन होगा। कल भी हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो फॉर्मूला लिखा था फाइनल, दोनों केसेस में वहां -L/F0 कहा था, दोनों शुरुआत वहीं से हो रही थी। तो नेगेटिव का मीनिंग वहां क्या होता है कि इमेज जो है वो इन्वर्टेड है, ये शो करता है। So here also the image is inverted, so it is this one. अब 1/UE को हम एक्चुअल में कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर थिन लेंस फॉर्मूला लगाकर और इन टर्म्स ऑफ इट्स फोकल लेंथ। क्लियर, इसकी जो फोकल लेंथ है उसकी टर्म में हम यहाँ पर इस 1/UE को कैलकुलेट करेंगे। तो उससे पहले जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट। Now applying thin lens formula for eyepiece। ओके, कल भी हमने देखो थिन लेंस फॉर्मूला आईपीस के लिए लगाया था कंपाउंड माइक्रोस्कोप में और उससे हमने 1/UE की वैल्यू कैलकुलेट की थी। यहाँ भी हम वही काम कर रहे हैं। आईपीस के लिए अगर हम इसको यूज लें तो 1/FE आईपीस की फोकल लेंथ, वो क्या होगा 1/ आईपीस की इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस क्या है आईपीस की -D -1/ आईपीस की ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है -UE। तो ये देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/D प्लस 1/UE। और यहां से अगर हम 1/UE कैलकुलेट करें तो ये इधर जब आएगा 1/D नेगेटिव का है तो ये भी प्लस का हो जाएगा 1/D प्लस 1/FE। क्लियर, 1/D प्लस 1/FE। और अगर मैं यहाँ पर FE कॉमन ले लेता हूँ 1/FE, तो 1/FE कॉमन लोगे तो इट विल बी 1 प्लस FE/D। यही बनेगा ना, वापिस मल्टीप्लाई करके देख लो, यही दोनों टर्म्स आ जाएगी। FE से FE ये कैंसिल हो जाएगा। So this value we put in this expression. So therefore आप इक्वेशन नंबर देके रेफर कर सकते हो, ओके, कि कहाँ से हमने इसको पुट किया है। Therefore the m will be what? It is -F0/FE and 1 plus FE/D. So this is the formula for the linear magnification, angular magnification by the telescope when final image form at least distance of distinct vision। क्लियर, इस फॉर्मूले के साथ में ये कंडीशन ध्यान रखना, distinct vision। क्लियर, so this is the all about the case first। Now we will take the second case, so fast take the screenshot। Now in the second case what will happen? Case second, when final image formed at infinity, so इसको हम नॉर्मल एडजस्टमेंट भी बोलते हैं, नॉर्मल एडजस्टमेंट। ओके, नॉर्मल एडजस्टमेंट ऑफ दिस टेलीस्कोप। क्लियर, तो ये कई बार जनरली यही पूछा जाता है कि नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए आपको फॉर्मूला डिराइव करना है या कोई न्यूमेरिक वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। सो इन दिस सिचुएशन व्हाट विल हैपन, दीज ऑल रेज बिकम्स पैरेलल आफ्टर दिस रिफ्रैक्शन। क्लियर, ये जो जितनी भी रेज हम यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं दे ऑल बिकम्स पैरेलल टू ईच अदर। तो मैं इसी को मॉडिफाई कर रहा हूँ डायग्राम को, बट आपको इसको सेपरेटली ड्रॉ करना है। अब यहाँ होगा क्या, देखो ये जो डिस्टेंस है इस UE को ही हम यहाँ पर क्या लिखेंगे FE लिखेंगे। जब और इस
के कारण बनने वाली इमेज, ठीक है, जब इसके कारण बनने वाली इमेज इसकी फोकस पॉइंट पर हो, देखो इसका फोकस पॉइंट तो है ही है क्योंकि इन्फिनिटी से आ रही है, अगर ये इमेज जो a डैश b डैश यहाँ बन रही है ये इस आई पीस के भी फोकस पॉइंट पर आ जाए, यानी इस पॉइंट को हम एफ ओ और एफ ई दोनों लिख पाए, देखो एफ ई भी है ये पॉइंट, एफ ओ भी है और बी डैश भी है, तीनों एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में ये जो रेंज होगी ना, ये यहाँ से जो बनेगी, दे ऑल विल फॉर्म द फाइनल इमेज एट इंफिनिटी, सो दे ऑल बिकम्स पैरेलल टू ईच अदर, ये सारी की सारी एक दूसरे के पैरेलल होंगी, लाइक दिस। क्लियर? तो इनको पैरेलल ड्रॉ करना इस तरह से, तो where they will form the image, they will form image at infinity, तो ऑब्जेक्ट भी इंफिनिटी पे है, ठीक है, और इमेज भी इंफिनिटी पे बन रही है, ऑब्जेक्ट भी इंफिनिटी पर है और इमेज जो बन रही है वो भी कहाँ बन रही है, इंफिनिटी पे बन रही है। तो रिमेंबर इन दिस, फॉर दिस टेलीस्कोप या आईपीस इज एडजस्टेड, आईपीस is adjusted so that a dash b dash form at its focus point, okay, here point b dash will be at FO and FE together, एक साथ यहाँ पर FO और FE इसी B डैश पॉइंट पर होंगे, इसके कारण भी फोकस पॉइंट पर और इसके भी फोकस पॉइंट पर, तो उसको हम FE लिख देंगे। तो यहाँ से अगर हम देखें ना तो 1/UE जो यहाँ पर था वो डायरेक्ट ही FE बन गया, तो फॉर्मूला FO/FE आ जाएगा, है ना, डायरेक्टली हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1/UE विल बी व्हाट, इट इज ओनली 1/FE। सो जस्ट टेक दिस स्क्रीनशॉट फास्ट। सो नाउ applying formula for magnification, सेम फॉर्मूला हम देखो, एक्चुअल में मैं वापस इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई बार इसको सेपरेटली पूछा जाता है, उसके साथ ऐड नहीं होता, तो हमें इसको अलग से डिराइव करना होगा, तो मैं वापस से बता रहा हूं, वी अप्लाई फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन बीटा अपॉन अल्फा एंड इट इज नियरली इक्वल्स टू 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। We are taking the same triangles, so it is a dash b dash upon b dash e divided by a dash b dash upon this b dash o, so it will be b dash o upon b dash e, a dash b dash will cancel out, और b dash o को तो हम यहाँ पर लिखेंगे f o और b dash e को हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस f e, तो जो मैग्निफिकेशन है यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस FO अपॉन FE, और ये मैग्निफिकेशन कब है, फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट और फाइनल इमेज एट इंफिनिटी, फाइनल इमेज एट इंफिनिटी। So for this case we use this formula, and remember in all three formulae जो मैंने बॉक्स में लिखे, एक तो नेगेटिव साइन था, दूसरा यहाँ पर एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। एक पॉइंट और मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा कि इन ऑल द फॉर्मूलाई, ओके, नोट m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f नॉट, तो जैसे मैंने कहा था कि ऑब्जेक्ट की फोकल लेंथ ज्यादा होती है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/FE, ठीक है, तो
इसकी जो फोकल लेंथ है एफ नॉट अगर वेरी वेरी ग्रेटर है एफ ई से, तो क्या होगा उस सिचुएशन में एम विल बी वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। अगर इन दोनों इसका जो रेशियो है एफ नॉट अपॉन एफ ई वो बहुत बड़ा है एक से, तो एम बड़ा होगा ना। तो टू इंक्रीज हैंस टू इंक्रीज एम वी टेक एफ नॉट वेरी वेरी ग्रेटर देन एफ ई। तो फोकल लेंथ को लार्ज लेने का रीजन क्या है कि वहां पर मैग्निफिकेशन इंक्रीज होता है, और एपर्चर को लार्ज लेने से क्या होता है, इमेज ब्राइट बनती है, और सेकेंड रीजन कि उसकी रिजॉल्विंग पावर बढ़ जाती है। तो एक एक पॉइंट को जो मैंने बोला है, जो डायग्राम में मैंने बताया है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। So now take the screenshot of the last slide, and this is all about the astronomical telescope. So take the screenshot.